Afternoon, teachers and mentors, and welcome, fellow aspirants. We are back with yet another lecture in our fundamental physics series, and now we have started to deal with the magnetism part of our physics. And as we have been talking about all of this since the first class, that magnetism and electricity both go hand in hand, and they have a certain connection in between their effects. So, and we also studied in the electricity series that a lot of, not a lot of, but some specific arrangement of electric circuits can give rise to the magnetic effect of electricity, and electric current when passed through certain apparatus can cause some metals or materials to turn into magnets. तो ये देखते हैं हम अपनी टाइमलाइन में कहाँ पहुंच चुके हैं. In the last class we dealt with the class 6th fun with magnets, which was a very basic introduction to magnetism in the NCERT, and although it didn't have much information, but there were some aspects which definitely initiated some interest in us regarding magnets. And now we have come to our class 10th part in the fundamental physics of magnetism, and here we will be dealing with some some beginner to intermediate level concepts regarding magnets, and we'll see how the magnetic field, or what that invisible force of magnetism, how does it exist and how does it affect the other metals and objects around it. So without further ado, let's just grab a quick revision of what we studied in the last class. Not much, but this was a good a geographical information as well as a general knowledge information that there is a magnetic hill in the Ladakh region, where if you park your cars or park your motorcycles, they would just start going uphill, because that whole rock is made up of magnetic or magnetite material, and it naturally pulls the metallic objects towards it. And there was a very ancient history later into it, that when the Earth's poles were in the reverse direction as of now, in the history when the North Pole was the South Pole and vice versa, then at that time this rock was formed because Earth was in a molten state at that time, and when the Ice Age came, this rock's poles got preserved, and it solidified in the due time. Once the Ice Age melted off, then this rock was permanently turned into a magnet, which was of the opposite polarity as of the Earth's poles, and hence things go. There's also a place where this opposite polarity can be seen. If you put down magnetic, like if you drop a magnet on that mountain, then it would keep levitating. So that's a good piece of information. And this was a simple story which was behind the name given to magnets. It was a farmer or a shepherd known as Magnus, who accidentally had a stick which was suffixed with a iron piece, and it got stuck while he was in the due process of his shepherdism, and it got stuck in between the rocks, and hence his observation led him to this principle that there was something that could attract metallic objects, and hence upon his name magnets were given their name. तो अब हम आगे चलते हैं, और आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो लास्ट क्लास में मैंने हिंट कर दिया था, कि हम जो मैग्नेट्स के पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ, वो क्यों हैं, और व्हाई द टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर, और व्हाई द सेम पोलैरिटी ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल्स ईच अदर. तो ये अब हम देखना शुरू करते हैं. एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. अब जो इनविजिबल फोर्सेस, हमें जो ऐसी फोर्सेस है नेचर में जो काम करते हुए उनके इफेक्ट्स दिखते हैं, बट उनका सब्सटेंस फोर्स कैरी कैसे हो रही है, हाउ इज दैट फोर्स मूविंग अबाउट, वो नहीं दिखता है. तो वो इस टर्म से कैटेगराइज या आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसे कहते हैं फील्ड. So fields are basically invisible or imaginary lines that we have
assumed in which or in the direction of which these forces act. तो ये एक सिंपल सा बार मैग्नेट है जो उस दिन भी हमने ड्राइंग बनाई थी कि बार मैग्नेट से कुछ ऐसे रेज निकलती हैं, ऐसे जाती हैं. तो आज देखते हैं कि वो करती क्या है असल में. सो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड, वो जो इनविजिबल फोर्स है मैग्नेट के अराउंड, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वो यहाँ हम देख पा रहे हैं. ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होते हुए जाती हैं एक फिक्स्ड या बार मैग्नेट के एंड या परमानेंट मैग्नेट के, एंड इट गेट्स टर्मिनेटेड टू द साउथ पोल. तो वही यहाँ पे लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. अब यहाँ आप लोगों को एक रेफरेंस मिलेगा आपके यश सर की क्लास से. यश हैज बीन टॉकिंग टू यू अबाउट फोर्सेस एंड क्वांटिटीज एंड कैसे क्लासिकल फिजिक्स में डिफाइन करते हैं चीजों को, वेलोसिटी और स्पीड में जो आपने डिफरेंस पढ़ा होगा. देयर इज अ टर्म कॉल्ड डायरेक्शन एंड विच गिव्स राइज टू अ क्वांटिटी कॉल्ड वेक्टर्स. Does anybody have a question? Yes, correct. Vector it is. वेक्टर्स किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ जब हम डायरेक्शन जोड़ देते हैं, जैसे स्पीड, अगर स्पीड है और उसके साथ अगर हम एक सेंस ऑफ डायरेक्शन भी डाल दें तो इट विल बी कॉल्ड वेलोसिटी. अब ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज है बस, लेकिन ये टर्म्स ऐसे डिफरेंशिएट किए जाते हैं कि डायरेक्शन का रोल अगर ऐड हो जाए किसी फिजिकल क्वांटिटी में तो देन इट टर्न्स इनटू वेक्टर क्वांटिटी. तो यहां हमारे केस में भी ऐसा है. डायरेक्शंस देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे, जो नॉर्थ से साउथ जा रही हैं. तो हेंस मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, एंड इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे. अब लिखा है इसके डायरेक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन to be the direction in which the north pole of the compass needle moves inside. अब ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये मैग्नेटिक नीडल के बारे में क्या बात हो रही है. लेकिन कंपास सबने देखा है, कंपास हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वो डिफ्लेक्ट होता है किसी मैग्नेट के आसपास लाने से, और अगर वो किसी मैग्नेट के अराउंड नहीं है तो हमेशा अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो अलाइन हो जाता है. तो एक कन्वेंशन बना लिया गया है कि therefore it is taken by convention that the field lines emerge from north pole and merge at the south pole. अब जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम देखते आ रहे थे कि जो बैटरी से निकलने वाली पोलैरिटी है प्लस माइनस, उसको हमने कन्वेंशन मान लिया था कि प्लस से माइनस की तरफ हम इलेक्ट्रिक करंट जो आई होता था उसे अज्यूम कर लिया था हमने कि उसका डायरेक्शन होगा. तो वैसे यहाँ पे भी एक assumption है हमारा कि नॉर्थ पोल से निकलती हैं लाइंस एंड साउथ पोल में टर्मिनेट हो जाती हैं. और अगर ये ऐसा होता है तो फिर एक नेचुरल क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि मैग्नेट के अंदर कैसे वो ट्रांसमिट हो रही है लाइंस. तो साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ वो ड्रिफ्ट कर जाती है, तो इसलिए ये क्लोज्ड लूप बन जाता है. यहां से निकल के जा रही है वेव, ऐसे अंदर से होके फिर आ जा रही है, ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा यहाँ. इसीलिए ये कंटिन्यूअस फोर्स रहती है, कभी टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती है, हमेशा एक तरीके से इसकी फोर्स लगती रहती है मैग्नेट की. एंड ये जो लाइंस आप देख रहे हैं जो बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, ये भी ऐसा नहीं यहाँ एंड हो जा रही है, दीज आर टेकिंग अ बिगर पाथ, वो बहुत बड़े सर्कल्स हैं. तो एक जितना पावरफुल मैग्नेट होगा उतनी दूर तक उसका रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा. जैसे अर्थ इज अ वेरी पावरफुल मैग्नेट एंड उसकी एक कंपास की नीडल उसके अराउंड अलाइन हो जाती है, मतलब इतना दूर तक, कितना दूर है नॉर्थ पोल हमारे से, लेकिन स्टिल वी लिविंग इन द ट्रॉपिकल रीजन्स वी कैन स्टिल फील द इफेक्ट ऑफ इट. तो ये हो गया. अब आते हैं बहुत ही मेजर 3 टॉपिक्स जो कि हम लोग पढ़ जरूर चुके हैं, लेकिन इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे राइज कर रही है, द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे राइज हो रहा है. वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है किसी चीज को मैग्नेट में या किसी चीज के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज राइज करने में. तो इफ वी लुक एट द हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अब यही हम लोगों ने देखा था, एक इलेक्ट्रिक बेल का कॉन्सेप्ट था, या फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है ये देखा था हमने. यहीं पे अब हम इसको पढ़ेंगे कि असल में कंडक्टर में होता क्या है, या एक जब वायर के अंदर से करंट पास होता है तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म कैसे
अराइज करता है। तो in this diagram we can see that this is a simple closed circuit, alright, और ये हमारे यूजुअल जो सर्किट के एलिमेंट्स हमने पढ़े थे कि ये हो गया हमारा की या फिर स्विच, ये हो गया हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी या बैटरी, और ये हम जो डायरेक्शन लिख रहे हैं ये हमारे एक करंट का डायरेक्शन है। सो इट कैन बी सीन कि क्लॉकवाइज यहाँ पे ऐसे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है एंड इस वाले फिगर में ऐसे की तरफ फ्लो हो रहा है। और ये जो वायर है इसके पास हमने रख दिया है एक कंपास, इस वायर से हम रेफरेंस ले रहे हैं, ये भी नॉर्मल वायर ही है, बस जस्ट हमने इसको चूज कर लिया है टू सी द ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि वो कैसे मैग्नेटिज्म को राइज दे रहा है। सो इफ वी कीप अ कंपास ओवर हियर वी कैन सी दैट द compass is being deflected, the needle of the compass is being deflected towards the right side, and in this portion we can see it is being deflected to the left side. मतलब ये कंपास का जो कंपास हमेशा नॉर्थ की तरफ इशारा करेगा, उसका जो एरो हेड है, तो इसमें कुछ ऐसा हमें दिख रहा है कि तो डिफरेंट पोलैरिटी के मैग्नेट्स बनते हुए दिख रहे हैं अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ या रूल आ जाता है जिसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। आपका जो राइट हैंड है, इसको मैं कैमरे में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपका राइट हैंड है, जैसे इस पेन को मान लीजिए ये वाला कंडक्टर है जिसको हम लोग यहाँ पे रेफरेंस कर रहे हैं कि जिसमें से करंट पास हो रहा है। तो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, इसकी जो टिप है पेन की, मान लीजिए ये डायरेक्शन है करंट का, नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगर हम अपने थंब को अलाइन करें डायरेक्शन ऑफ करंट से, ये इधर की तरफ अगर जा रहा है, अगर इस पेन के साथ हम अपना थंब अलाइन कर लें इसके डायरेक्शन में और फिर अपने हाथ को ऐसे कर्ल करें, तो दिस कर्ल, ये जो ऐसे कर्ल हो रहा है हमारा हाथ, ये हो जाएगा डायरेक्शन। मतलब अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो रही है सर्कुलर फॉर्म में, और वही चीज अगर ये ऑपोजिट हो जाए, फिर इसकी तरफ हमने अपना थंब किया, राइट हैंड का थंब, एंड फिर अपने हाथ कर्ल किए, तो मतलब ऐसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। सो दीज वर दी basic fundamentals regarding how a current is being how a magnetic field is being generated in a straight current carrying conductor। एक straight line में था कंडक्टर, इसलिए ये 3 टॉपिक्स हमने कवर किए। एंड इफ समवन हैज अ क्वेश्चन क्विकली आप शूट करें चैट बॉक्स में। ये आई गेस जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें थोड़ी सी एक फन फैक्ट ये मिला होगा कि ऐसे भी हम करंट का मतलब करंट के डायरेक्शन में अगर हमने ऐसे कर दिया तो if it is possible please repeat 13.5। प्लीज क्वेश्चन थोड़ा सा और इलैबोरेट करें, 13.5 में रीच नहीं किया हूँ। ओके द फिगर 13.5, ओके। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जो हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में पढ़ते आ रहे हैं, ये एक सर्किट बना हुआ है हमारा सिंपल, ये हमारा बैटरी का सोर्स था, ये हमारे कनेक्टिंग वायर्स थे, एंड ये हमारा की था, एंड ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट था जिसमें हमने कोई मतलब लोड की बात नहीं कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हम एक इलेक्ट्रिसिटी का रोल देखना चाह रहे हैं कि वो मैग्नेटिज्म को राइज कैसे देता है। ये करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ऐसे, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इस वायर में अगर आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं तो ऐसे अपने अपने राइट हैंड से वायर की तरफ अगर आप अपना थंब ऐसे लगाएंगे यहाँ पे, तो इफ यू विल कीप योर थंब इन दिस डायरेक्शन एंड देन कर्ल योर फिंगर्स अराउंड इट, तो आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ऐसे ऐसे जनरेट हो रही है, कुछ ऐसे, या फिर अगर इसको मैं पूरा बनाऊं तो ऐसे ऐसे जनरेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, और वाइस वर्सा इस डायरेक्शन में दूसरे साइड में ये यू जनरेट हो रही है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये जो फील्ड जनरेट हो रही है फोर्स कैसे लगाती है, मतलब व्हाट इज द फोर्स दैट दे एक्सर्ट एंड हाउ इज दैट फोर्स बीइंग एक्सर्टेड ऑन एनी मेटालिक सब्सटेंस, या फिर जो भी सब्सटेंसेस मेटल्स या मटेरियल्स हैं जो मैग्नेट से इफेक्ट होते हैं। तो इस डायग्राम को वापस और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
तो फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये अब हमें वो दे देगा। एक और हमें यहाँ पे रूल मिलता है जिसको कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में एक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो फोर्स लगाएगी। तो अभी तक हम देख रहे थे कि ये जो हमने थंब बनाया था अपना, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरफ अगर है, अगर हम उसके अराउंड अपना थंब बनाते हैं तो ऐसे करके हमने लिया था कि जिधर हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं वो हमें डायरेक्शन दे देता है फील्ड का। इधर हमारा थंब है, इधर जो हो गया डायरेक्शन ऑफ फील्ड था, जो कि ऐसे हो गया। तो अब अगर हमें इतनी चीजें पता चल गई, तो अगर हम अपना लेफ्ट हैंड ले और फील्ड का डायरेक्शन हमने ऐसे घुमा के पता कर लिया है, और करंट को जो एक, चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसी को हमने बनाया हुआ था, यहाँ पे कंपास था हमारा, था और ये रहा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे ये कंपास की नीडल किधर डिफ्लेक्ट हो रही है, ये अब हमें लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बता के देगा कि कैसे होता है। तो डायरेक्शन करंट का नीचे था, करंट के डायरेक्शन की तरफ हमने अपनी ये उंगली कर दी, मिडिल फिंगर, एंड देन फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्टली से मिल जाएगा। फील्ड भी हमें जिस तरफ क्या कहते हैं, अगर हमने करंट का डायरेक्शन देख लिया तो फील्ड हमें मिल ही जाएगी। ये चीज हो गई। एंड फिर जो थंब का क्या कहते हैं मोशन है, थंब किधर की तरफ मुड़ती हुई दिख रही है फील्ड, अगर वो चीज हमने पता कर ली तो हमें फोर्स भी पता चल जाएगी कि किधर फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये इस फिगर में हम ये देख ही पा रहे हैं कि ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था। लेफ्ट हैंड थंब रूल से ऐसे हम लगा के देखेंगे तो ये दिख ही रहा है कि इधर ये था हमारा करंट, इधर हमने ऐसे थंब लगाया तो हमें ये डायरेक्शन मिल गया, कर्ल हो रही है हमारी फिंगर्स, इधर जा रही हैं। तो इसी डायरेक्शन में अगर हमने अपनी ये लेफ्ट हैंड रखा और ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो हमें फील्ड का डायरेक्शन बता रही है, तो फटाक से हमें फोर्स मिल गई परपेंडिकुलर लगती हुई इधर। जो थंब हमारा है, थंब जो है हमारा डायरेक्शन इधर कर रहा है लेफ्ट की तरफ, एंड ये जो कंपास है वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट भी हो गया। एंड इन दी ऑपोजिट केस, जो फर्स्ट वाला डायग्राम था उसमें उसमें जो था क्या कहते हैं डिफरेंट साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड देन ये नीश क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ फन फैक्ट की तरह थे, ये आएंगे नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है अर्थ पे, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा पूछे जा सकते हैं। एंड ये जो अब टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सर्कुलर वाला, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जनरल लाइफ में हमारे हम इन्हीं स्ट्रेट लाइन में चलती हुई इलेक्ट्रिसिटी से कैसे फील्ड बन रही है वो उस पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि उसके जनरल यूज केसेस देखे भी नहीं लोगों ने लाइफ में। लेकिन सर्कुलर फॉर्म में जब करंट पास होता है तो उसके इफेक्ट्स हम रोजमर्रा में देखते हैं। जैसे कि उस दिन हमने जाना था कि मोटर्स होती है, इलेक्ट्रिक मोटर्स फैन में जो लगी है, हमारे मिक्सर ग्राइंडर्स में जो लगी है, कूलर्स में और एसीज में, वो सारे कुछ इस सर्कुलर मोशन में जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो उससे कैसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसके प्रिंसिपल पे काम करती है। तो यहाँ पे वही सीधा हम इफेक्ट देखेंगे कि अब हमें इतना समझ में आ गया है कि राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में जब करंट जा रहा होगा। तो इधर एक सर्कुलर लूप में अगर एक हम ऐसे तार को मोड़ के ऐसे बना दें, कॉइल जैसे बना दें, और उसमें करंट ऐसे डाल दें, हम प्लस माइनस से डिनोट करते थे, तो यहां से करंट जो है पास होना शुरू हो गया ऐसे इस डायरेक्शन में। तो अब किसी भी पॉइंट पे हमें करंट का डायरेक्शन तो पता है, ऑल्दो ये सर्कुलर है, इसका कोई एक डायरेक्शन नहीं है, वो साइक्लिक इन नेचर हो गया। लेकिन किसी एक छोटे पॉइंट पे अगर मान ले हम यहाँ पे ले ले या फिर यहाँ पे ले ले, तो यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन मान ली हमने, उधर की तरफ हमने ऐसे थंब अपना किया, तो हमें टर्न करके पता चल गया कि किधर होना चाहिए करंट।
ऊपर की तरफ हमने ऐसे यहाँ पे अपना थंब रख लिया, ऐसे ऐसे यहाँ पे, तो हमें पता चल गया कि इनवर्ट जो है वो जा रहा है करंट, ऐसे यू फ्लो हो रहा है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे जनरेट हो रही है इस डायरेक्शन में। हर पॉइंट पे हम जान सकते हैं कि कैसे जनरेट हो रही है। तो सर्कुलर बॉडीज या सर्कुलर करंट जब फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में, तो उससे बहुत अच्छी एक मतलब एक फिनोमेना, एक यूजफुल फिनोमेना हमारे सामने आता है, जो किसी चीज को रोटेट कर पाएगा। मतलब इसकी जो फील्ड है उसकी फोर्सेस ऐसे डायरेक्शन में, अब मैं इसको एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा कि क्यों होती है, क्योंकि अम, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन शायद नहीं है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन देख रहा था उसमें उनका यूसेज नहीं आया था। लेकिन वो कुछ ऐसा करेंगी, सारी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं, वो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर भी शायद आपने यश की क्लास में पढ़ा था, कि उनका जो नेट फोर्स, सारी फोर्सेस किसी किसी डायरेक्शन में लग रही है, बट उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स एक डायरेक्शन में लग रही है, वो किसी भी बॉडी को घुमाने का काम करेगी। अब इस सर्कुलर लूप के अंदर अगर कोई ऐसी बॉडी रखी होगी, कुछ कॉइल्स होंगी या फिर कुछ मूवेबल सब्सटेंसेस होंगे, तो वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, उसकी जो फोर्स होगी वो एक डायरेक्शन में लगने लगेगी। या तो वो किसी चीज को इधर की तरफ बाहर शूट कर देगी, जैसे कोई अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा सिंपल, तो उसे बाहर शूट कर देंगे एक की तरफ, जिधर ये डायरेक्शंस जा रही हैं, फील्ड लाइंस जा रही हैं उसकी तरफ या उसके ऑपोजिट तरफ। या फिर अगर कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स अपैरेटस है, जैसे डिफरेंट कॉइल्स का कुछ सिस्टम बीच में और परमानेंट मैग्नेट्स का होना, तो वो एक मोटर को इजाद देंगी। ये मोटर के जनरेटर के कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें ये थोड़ा सा जानना जरूरी था कि क्यों सर्कुलर फॉर्म में फील्ड लाइंस हैं, और क्यों स्ट्रेट लाइन में वो किस एक सिंपल सर्किल का फॉर्म लेती हैं, एंड इन अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर वो अलग अलग डायरेक्शन में जाके एक रिजल्टेंट फील्ड बनाती हैं। अब ये एग्जैक्ट पुराना कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया, सोलेनॉइड या फिर एक इंडक्टिव कॉइल वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसको दर्शाया जा रहा है यहाँ पे कि एक कॉइल अगर हमने बना दी एक आयरन मटेरियल के ऊपर या फिर किसी भी मैग्नेटिकली ससेप्टेबल मटेरियल के ऊपर, तो it can turn the if when a current passes through that apparatus and around that coil, then it has the power to convert that iron or magnetic core into a magnet. तो इसके भी डायरेक्शंस अब हम जानना सीख गए कि कैसे अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी डायरेक्शन में, तो कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करेंगे, ये भी हमें समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इधर ध्यान दीजिए, ये जो डायरेक्शन है करंट का इधर जा रहा है, यहाँ से प्लस से निकल के और इस पूरे कॉइल में ऐसे 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 जाएगा। हर डायरेक्शन में हमें बस करना क्या है, करंट का डायरेक्शन एक छोटे से एरिया में पता करना है, वहां पे प्रथम लाना है और कर्ल कर देना है अपना, इसको ऐसे घुमा देना है अपने हाथ को उसके अराउंड, वहां डायरेक्शन मिलेगा। अब हर पार्ट पे वो ऐसे से डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, तो जो रिजल्टेंट डायरेक्शन बनेगा करंट का वो इधर की तरफ हो जाएगा। नॉर्थ से निकलता हुआ सब कुछ साउथ में जाएगा और साउथ से निकलता हुआ नॉर्थ में। तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा एक सोलेनॉइड या फिर एक iron piece के around wounded coil will convert into a temporary permanent magnet which is on our discretion. एंड इसके यूजेस हमने जाने ही थे कि ये एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है, डंप स्टेशंस में से बड़े मेटालिक सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, और एक यू नो इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज होता है, और इसका जो रिवॉल्विंग सोलेनॉइड का काम बस इतना ही है, ऐसा जो टू एंड फ्रो मोशन में काम आए। तो बेल में जैसे टू एंड फ्रो मोशन था, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी टू एंड फ्रो मोशन ही है, जब तक वो ऑन है चीजें उस पर चिपक रही है, जब तक वो जब करंट उस पर हटता है तो चीजें छूट जाती हैं, बाइनरी एक्शन की तरह काम करते हैं। ये हमने जान ही लिया फ्लेमिंग्स थर्ड हैंड रूल क्या था। तो दीज वर द बेसिक अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स जो अभी हमने जाने। तीन बड़ी चीजें, एक तो कि स्ट्रेट कंडक्टर में, स्ट्रेट किसी एक स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें राइट हैंड थंब रूल लगा के
ऐसे जान लेना है कि किधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन होगा। और बस इतना ही है कि करंट जिस तरफ भी फ्लो कर रहा है उस तरफ अपना थंब रखेंगे और हाथों को कर्ल करके देखेंगे तो उस डायरेक्शन में क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हो रही है एंड वाइस वर्सा। फिर सर्कुलर मोड में हमने देखा कि करंट जो है वो सिंपल स्ट्रेट लाइन कंडक्टर में जैसे फ्लो करता है वैसे ही कर रहा है, बट डिफरेंट एंगल्स पे वो चेंज होता जा रहा है और शायद वो रिजल्टेंटली एक डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर देगा या एक डायरेक्शन में उसकी फील्ड्स सारी की सारी फ्लो करने लगेंगी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मॉडर्न लाइफ के जो मॉडर्न साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो पार्टिकल कोलिजन नाम सुना हो कभी आप लोगों ने, या फिर जो फर्मी लैब है उसमें जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स है जहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्स की उत्पत्ति की खोज की जा रही है, बहुत डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स को टकरा के कुछ कुछ चीजें की जा रही है, वो एक्सेलरेटर्स जो है वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करती हैं क्योंकि ये इनविजिबल पावर है फील्ड्स की जो किसी भी चीज पे इफेक्ट डाल सकती हैं जो ससेप्टेबल है मैग्नेटिज्म के। एंड यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज आल्सो द ओरिजिन ऑफ लाइट एज वेल। लाइट भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो ये तो बड़ी बातें हो गई। लेट्स कम बैक एंड just get a quick glimpse of what we have studied today. So a compass needle is a small magnet. Its one end which points towards north is called north pole and the other end which points towards south is called the south pole. ये by observation हमने सबने देखा ही है अपनी लाइफ में कभी ना कभी कंपास हमने देखा है। Then it says कि a magnetic field exists in the region surrounding a magnet in which the force of magnet can be detected. Magnetic field कैसे एग्जिस्ट करती है एक बार मैग्नेट से वो हमने देख लिया। अब जैसे हम सर्किट्स बनाते थे तो हम फटाफट एक डायग्राम बना के देख लेते थे, यहाँ पे भी हम फटाक से एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ हमने बना दिया उसको, तो नॉर्थ से निकल के आएंगी साउथ में हमेशा लाइंस का डायरेक्शन बताना जरूरी है क्योंकि एक और चीज जानी हमने कि मैग्नेटिक फील्ड इज बोथ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ डायरेक्शन एंड अ मैग्नीट्यूड, इसलिए उन्हें वेक्टर कह रहे हैं। तो ये ऐसे आती है और साउथ पोल से अंदर ही अंदर नॉर्थ पोल की तरफ चल जाती है। एंड एक और एक टर्म देखा कि these lines are circular in nature, cyclic in nature, टर्मिनेट नहीं होती, वो एंडलेस लूप में चलती रहती है। इज दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट फोर्स। फिर हमने देखा कि the field lines are used to represent a magnetic field. Yes, a field line is the path along which a hypothetical free north pole would tend to move. मतलब कि एक कंपास को अजम्पशन लेकर कि उसका जो नॉर्थ पोल जिधर पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन हम मान लेंगे कि फील्ड का नॉर्थ है। वो जो फील्ड लाइंस है मूव कर रही हैं जिस डायरेक्शन में, वो उस नॉर्थ पोल को डिनोट करेगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एट अ पॉइंट बाय द डायरेक्शन दैट अ नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट वुड टेक। वही बात घुमा के लिख दी। Field lines are closer together where the magnetic field is greater. ये एक क्लियर ऑब्जर्वेशन है कि जो मैग्नेट होगा, अब इन डायग्राम्स को देख के भी आप समझ पा रहे होंगे कि जो मैग्नेट है उसके जो पास की, उसके जितना पास हम आ रहे हैं उतनी लाइंस जो है क्लोजली टाइड होती जा रही है, उतनी ज्यादा डेंस दिख रही है। मतलब कि जो मैग्नेट के सबसे पास का एरिया होगा वहां पे फोर्स सबसे ज्यादा लगेगी, जो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम फील करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे वो सबसे ज्यादा होंगे, और जितना हम दूर जाते जाएंगे उतना ही क्या कहते हैं वो लूजली फील्ड होती जाएंगी, लूजली कपल हो जाएंगी सारी फील्ड लाइंस और कम उनका इफेक्ट फील होगा। यही बात लिखी थी कंडेंस करके वहां पे। I'll take up questions after this conclusion has been done. So then there's this experiment ki a metallic wire carrying an electric current has associated with it a magnetic field, and the field lines about the wire consist of a series of concentric circles whose direction is given by the right hand thumb rule. ये अब हम जान ही चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमें उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जानना हो तो बस उसके डायरेक्शन को हम जान ले, करंट किधर फ्लो कर रहा है उधर अपना थंब रखेंगे और
फिंगर्स के कर्ल होने की डायरेक्शन से हम बता देंगे किधर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. Then the pattern of the magnetic field around a conductor due to an electric current flowing through it depends on the shape of the conductor. अब यही दो बड़े इन्फरेंसेस हमने जाने कि या तो वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करेगा करंट एक सर्किट में, या फिर एक सर्कुलर लाइन में फ्लो, सर्कुलर अरेंजमेंट में फ्लो करेगा. तो ये हमारे यूज केसेस के हिसाब से हो सकते हैं. स्ट्रेट लाइन वाला ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं आपको, लेकिन सर्कुलर वाला हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं. बेसिक रोटेटिंग जो ऐसे डिवाइसेस हैं जो चीजों को घुमाते हैं, रोटेटिंग फोर्स जनरेट करते हैं, वो सभी इसी अंडरलाइन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे जनरेट होती है सर्कुलर फॉर्म में, तो वो फोर्स कैसे लगा रही. अब जो फैन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, वो एक थोड़े से और कॉम्प्लेक्स अपैरेटस पे काम करती है, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में और क्लियर हो जाएगा हमें. अभी जो हमें सीखना था कि डायरेक्शन करंट का जिधर है एक सर्किट में, फील्ड किधर जनरेट होगी, बस इस चीज को बैठा लेना है दिमाग में. तो हम रिजल्टेंट वाली चीज भी निकालना सीख पाएंगे कि किसी अगर हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लगानी है तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कैसे जनरेट किया जाए कि एक डायरेक्शन में फोर्स मिले, या फिर एक घूमती हुई फोर्स मिले, किसी चीज को रोटेट करने वाली फोर्स मिले, वो कैसे करना है. तो ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो देन इट विल बी इजियर फॉर अस to grasp the concept of an electric motor and an electric generator. So the pattern of the magnetic field around a conductor due to an electric current flowing through it depends on the shape of the conductor. Also, the magnetic field of a solenoid carrying a current is similar to that of a bar magnet. तो ये तो हम अपने ऑब्जर्वेशन से जान गए कि बार मैग्नेट जो है या तो रिपल्शन की फोर्स लगा रहा होता है या अट्रैक्शन की फोर्स लगा रहा है. तो और मेटालिक सब्सटेंसेस को तो सीधा वो अट्रैक्ट ही करेगा, रिपेल नहीं करेगा. तो एक ही डायरेक्शन में लगती हुई फोर्स दिख रही है हमें, वो उसके सेंटर की तरफ, नॉर्थ, ये जो साउथ से नॉर्थ वाला डायरेक्शन है, बार मैग्नेट जो है उसके यहाँ पे हमें स्ट्रेट ऐसी फोर्स लगती हुई दिख रही है. ऑल्दो ये ऐसे टर्न होके घूम के आ जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोर्सफुल एरिया है वो ये वाला. यहाँ पे काफी हद तक हमें एक स्ट्रेट लाइन में टुवर्ड्स नॉर्थ पोल लगती हुई एक फोर्स दिख रही है. तो अगर कोई हमें अपैरेटस ऐसा बनाना है, हमारे पास परमानेंट बार मैग्नेट नहीं है, तो एक सोलेनॉइड या फिर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर कॉइल लपेटने के बाद अगर उसमें हम करंट पास करेंगे एक डायरेक्शन का, तो वो एक बार मैग्नेट के बराबर बन जाएगा. तो एक्सेलरेटर्स, किसी चीज को एक ही डायरेक्शन में अगर तेजी से भेजना है, एक्सेलरेट करना है, तो उसके लिए ये टाइप ऑफ अपैरेटस काम आएगा. ये हम सीख गए. और फोर्स कैसे लग रही है हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से जानेंगे. Then an electromagnet consists of a core of soft iron wrapped around it with a coil of insulated copper wire. ये सोलिनॉइड को थोड़ा और एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, just for a definition point of view. A current carrying conductor when placed in a magnetic field experiences a force. A current carrying conductor when placed in a magnetic field experiences a force. ये एक मतलब ट्रांजिशन मान लीजिए. हमारे नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसके और अभी के टॉपिक्स के बीच का ब्रिज है ये. इसकी हमने एक छोटी सी चीज पढ़ी कि फ्लेमिंग्स रूल जो था, इसको मैंने बता तो दिया यहाँ पे कि अगर हमने एक सर्किट में करंट का डायरेक्शन पता कर लिया है, राइट हैंड थंब रूल से उसका फील्ड का डायरेक्शन पता कर लिया है, तो अब हम फोर्स किधर लगा रहा है, ये जो बार मैग्नेट वाली चीज सोलिनॉइड का हमने पढ़ा, ये तो एक तरफ फोर्स लग रही है बार मैग्नेट में, वो तो ठीक है, लेकिन और डिफरेंट अरेंजमेंट्स में भी हम डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स एक्सर्टेड निकाल सकते हैं यूजिंग फ्लेमिंग्स रूल, जो कि और हमें अच्छे से समझ में आएगा जब मोटर्स और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हम पढ़ेंगे. तो दिस इज जस्ट अ हेड स्टार्ट टुवर्ड्स फॉर द नेक्स्ट क्लास दैट वी गो थ्रू. इसको एक बार देख लेते हैं कि है क्या. A current carrying conductor when placed in a magnetic field experiences a force if the direction of the field and that of the current are mutually perpendicular to each other, then the force acting on the conductor will be perpendicular to both. अब ये
अगर आप लोग स्मिता मैम और यश सर के क्लास में डायरेक्ट वो ध्यान दे रहे हैं तो ग्राफ वगैरह बनाने आप लोगों ने सीखे होंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलते हैं कुछ कुछ, है ना। तो वही 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए एक एक्सिस और आ जाती है जिसको कहते हैं जेड एक्सिस। अब ये जेड एक्सिस या तो स्क्रीन के अंदर होगी या तो स्क्रीन के बाहर होगी। और इसको एक और ढंग के तरीके से बनाए तो प्रोसेस को टिल्ट करते हैं ऐसे। अब थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ये बाहर निकलती हुई लाइन है, ये जेड। तो ये वाली लाइन यही कह रही है इफ डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू दैट ऑफ द करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेफ्ट हैंड रूल से हम देख रहे थे करंट अगर इधर है और डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऐसा है तो फोर्स जो जनरेट होगी वो हमारा थंब हमें बताएगा। तो अगर कहीं पे स्ट्रेट ऐसे वायर रखा हुआ है, उसकी तरफ हमने ऐसा अपना इधर इधर की तरफ फ्लो कर रहा है करंट, इधर हमने अपनी मिडिल फिंगर रख दी और इस रूल से हमें पता चल गया, मतलब अगर थंब वाला रूल लगा रहे कर्ल करके तो इधर आती हुई दिख रही है फील्ड हमें, ऐसे रख लेंगे तो सीधे यही निकल रही है फील्ड, ऐसे कर्ल हो रही है लेकिन इधर एकदम इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर बाहर की तरफ ही होगा। यहाँ ऐसे कर ली तो अगर फोर्स हमें देखना होगा तो अपवर्ड लगती हुई फोर्स, ये थंब का डायरेक्शन जो है अपवर्ड फोर्स हमें दिखा देगा। तो अगर कहीं स्ट्रेट ऐसे वायर पड़ा है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो अगर वहां पे हमने कोई ऐसे सब्सटेंस रख दिया जो मैग्नेट से इफेक्ट होता है, आयरन है या फिर कुछ भी है, तो उस पर फोर्स लग जाएगी इधर ऊपर की तरफ। ये एक फ्लेमिंग्स रूल का कॉन्सेप्ट। इसको हम एक बार फिर से रिविजिट करेंगे। यस, इट्स अ 3 डायमेंशनल। डिमेंशंस यही होते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, जो डिमेंशंस हम जानते हैं वो डायरेक्शंस को ही कहा जाता है। ऑल्दो मॉडर्न फिजिक्स में एक फोर्थ डिमेंशन भी ऐड हो गया है जिसको टाइम हम जानते हैं क्या है, बट स्पेस या यूनिवर्स का जो एरिया है उसको हम वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल है, लेकिन स्पेस इज अ 4 डायमेंशनल क्वांटिटी। टाइम इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड एज अ डिमेंशन इन इट। हम अपनी आंखों से अपनी लाइफ में 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स ही देख रहे होते हैं अपने अराउंड, लेकिन पूरी लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए यू नीड अ फोर्थ डिमेंशन, दैट इज टाइम। Well, that is way out of our scope of study and let's not dwell there. So this is a wrap up. आज हमने जो जो पढ़ा आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल क्विकली रिवाइज ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि शायद एक बार में ना समझ आए। लेकिन राइट हैंड थंब रूल तो मेरे ख्याल से काफी इजी हो गया होगा। फ्लेमिंग वाला थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसको एक वीडियो के थ्रू हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने, जब हम मोटर एंड जनरेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे। So that will be all for today. Thank you guys and have a nice day.